I hope this time everyone can hear the clear voice. uh, ऐसा कभी हुआ नहीं पहले, आज क्यों हो रहा है? आई डोंट नो, सडनली. Hi Vibha. I'm live right now. Yes. Okay. Why is it so? Your voice is clear. Thank you so much for letting me know. My voice is clear, but when we join together, I don't know what's the issue. Please come, everyone. I don't know. My voice is clear. I hope so. इस बार सब कुछ ठीक रहे. Is everyone here? Okay, invite. Plus, I am letting her in too. I hope so. इस बार से hello, hi Jay. Hi. Welcome back. Your voice is clear. Am I clear? You are clear, but when you join, there is a disturbance coming. When I'm joining, Yes. I have removed the earphones. Maybe that's why. I This don't is know. happening for the first time. This is I'm for so the first time for sure. We never faced this issue prior. Now, Suruchi, Oh, is it better? yes, it's so better. Thank you so much. Thank Chaliye, yes, God. Thank God. yes. Let's welcome again Mr. Jay Sharma. I'm so Hi. glad that you are here. आज हम बहुत सारी बातें करेंगे जॉय के बारे में, जो कि आपने स्टार्ट की थी और अभी वो 5000 प्लस मेंबर्स की कम्युनिटी है. यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब फॉर द सोसाइटी. यू आर अ सोशल एक्टिविस्ट एंड ऑफ कोर्स एन एंजल हु ब्रिंग्स so much of smile on others' face. Yes, Tanu? True. Now, let's have a session with Jay Sharma, who is really a human doing a cause for humanity, and he is a hope to others, to the needy ones especially. So, Jay, can you please tell us, can you elaborate about Joy, the foundation you have started, the NGO you have started? उसके बारे में कुछ बताइएगा, please. Ji. First of all, thank you so much for inviting. And finally, we are live now after all Yes. the. So All the many hurdles attempts. we have crossed. So, Yeah. I'll start with Joy, how we founded Joy. तो Joy को हमने 5.5 साल पहले रजिस्टर किया था. We were a group of friends actually. So if I talk about Jay was already working for the NGO for a lot of NGOs for a lot of I was doing a lot of volunteerism actually for a few NGOs. So and then just 5.5 years back we decided कि हमें NGO रजिस्टर करना चाहिए और like we should go like very हमें प्रॉपर अच्छे तरीके से लीगल तरीके से आगे Right, pursue करना चाहिए. तो right, मेरे मेरे फ्रेंड्स ने लीगली से प्रॉपर परस्यू किया. वी डिड ऑल द डॉक्यूमेंटेशन वर्क एंड ऑल एंड वेरी सून वी गॉट इट रजिस्टर्ड. एंड ये right. नाम था जॉय. कई लोग मुझे बोलते हैं जॉय और जय आपने खुद जानबूझ के नाम रखा है कि सेम सेम हाँ. ऐसा नहीं है. Yes. जॉय Jai, Joy, we also thought the same. अगर मेरे 100 कॉन्टैक्ट्स हैं तो उसमें से 50 लोगों ने मेरा नाम जॉय के नाम से सेव करा है क्योंकि उनको अभी भी लगता है कि मैं जय शर्मा नहीं, मैं जॉय शर्मा है. तो but it's again उसकी फुल फॉर्म है जॉय. फुल फॉर्म है जस्ट ओपन योरसेल्फ. तो Yes. या तो उस टाइम पे हम लोगों ने इसे रजिस्टर किया. वी वर नॉट वी डोंट हैव दैट मच ऑफ फंड्स एक्चुअली. तो हम लोगों Oh, ने छोटी एक्टिविटीज करनी स्टार्ट करी. एजुकेशन ड्राइव्स, हेल्थ एंड सैनिटेशन. बट विद इन अ ईयर वी वर एबल टू मेक a team, a girls team, who were hmm. actually working for women health and sanitation, which is actually a big topic to cover Big issue. and a very sensitive one also. तो बिल्कुल. जॉय के काफी सारे एक्चुअली ये था कि मेरा स्टार्टिंग से लोग मुझसे पूछते थे कि आपका मोटो क्या है एनजीओ खोलने का, या ये जॉय करता क्या है. सो आई ऑलवेज यूज्ड टू से कि जॉय डजंट हैव अ पर्टिकुलर मोटो दैट वी आर ओनली फॉर द एनवायरनमेंट. तो हाँ. जॉय ऐसा है कि फॉर एग्जांपल इफ आई हैव एक्सपर्ट एनवायरनमेंट तो ठीक है, आप एक अलग से एक्सपर्टी है, आप एक अपना चैप्टर रन करो. इफ समवन Hmm. हैव एक्सपर्टी
doing something with the animals. तो बट मेरी नहीं, बट हमारे पास हमने एक प्लेटफॉर्म बनाने का, क्रिएट करने का सोचा कि ठीक है, यूथ हैव द पोटेंशियल ऑफ डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, so let's just make a platform where every youth can come and connect, because कोई चाहता था कि वो environment के लिए काम करे, कोई चाहता था कोई health sector के लिए काम करे, कोई education के लिए, Right. women. Right. So we did not say a no for that. We were always welcoming new ideas, and so basically this was happening all the time. So हर साल एक नई चीज add on, हर साल we were never Interesting. for मैंने केदारनाथ आपदा खुद देखी है, क्योंकि मेरा हाँ. पहला सोशल जो मेरा एक्सपोजर था एनजीओ के लिए, तो वो मैंने पहले बार आपदा के लिए काम किया था, बट मेरी टीम में कोई ऐसा नहीं था जो आपदा में पहले काम कर चुका हो या उसको पता हो कि वो कैसे करते हैं, बट वेरी सून वी वर इवन टीम जो आपदाओं के लिए रेडी हो, या आपदा आए तो विद इन 48 आवर्स के अंदर वो वहां पर रिस्पॉन्ड कर सके. तो न्यू थिंग coming up, no one was ready for COVID actually, but हमने इस चीज को, but fortunately मेरी और मेरी टीम ने बहुत जल्दी चीजें समझी और उस पे एक्ट किया. पिछले साल भी we were actually the first NGO who started with the ration and everything, and this year I don't know what happened, even COVID ड्यूटीज के दौरान मेरे को कोविड हो गया था. मुझे इंडिया में कोविड बिल्कुल पीक पे था, उससे 10 दिन पहले मुझे कोविड हो गया था. आई वॉज वर्किंग फॉर कोविड, आई वॉज ऑन कोविड ड्यूटीज एक्चुअली. सो मुझे जैसे ही कोविड होके हट रहा था, या आई वॉज ऑलमोस्ट अबाउट टू गेट माई नेगेटिव रिपोर्ट्स, तो मेरे पता नहीं क्यों दिमाग में आया, लेट्स जस्ट स्टार्ट बाइंग सम लाइक ऑक्सीजन सिलेंडर्स, जरूरत पड़ सकती है लोगों को. एंड ही हुआ अचानक से. इस साल कोविड में बहुत फर्क था. इस साल कोविड में बहुत या तो देन पता नहीं अचानक से इट्स अ सिक्स सेंस यू कैन से, बट मेरे दिमाग में आया लेट्स जस्ट गो फॉर इट एंड बाय आवर ओन सिलेंडर्स. सो दिस इज हाउ आई थिंक एवरी डे जॉय इज एक्सप्लोरिंग न्यू फील्ड्स, एंड वी आर वर्किंग इन अ लॉट ऑफ फील्ड्स नाउ. Wow, that is so nice. Basically, Joy is open to every social work anyone wants to do, right? Right. There is no limit. There is no limit. Awesome. You are giving Awesome. every possible help to everyone, right? Yeah. और जब हम कुछ अच्छा काम कर रहे होते हैं ना तनु, तो अपने आप ही, जैसे अभी जय ने बोला कि एक सिक्स सेंस थी, क्योंकि जब हम बिल्कुल हेल्प करने के बारे में सोचते हैं ना, तो आप उसी तरफ आगे 4 कदम आगे सोचने लगते हो कि हो सकता है ऐसा हो जाए, हो सकता है वैसा हो जाए, तो आई हैव टू बी प्रिपेयर्ड. ट्रू. तो आपकी जो टीम है जय, बहुत सारे लोग अपना वॉलंटरी काम करते होंगे, बट कितने लोगों की टीम है एक्चुअली, मतलब अगर मैं कोर मेंबर्स की बात करूं तो? अगर हम कोर मेंबर्स की बात करें तो वी आर अ टीम ऑफ 55 पीपल, लाइक, और सारे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं. कुछ लोग पास आउट हो चुके हैं और दे आर वर्किंग इन देयर जॉब्स, बट दे आर ऑलवेज कनेक्टेड विद अस. सो बट कोविड के दौरान मैंने थोड़ा सा इसी का ध्यान रखा कि ज्यादा टीम को मैं ग्राउंड पे मत लेके आऊं, बिकॉज इट वाज me and my team actually. Yeah. Vibha is saying I also want to join Joy. For now. Okay. तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने, ठीक है, आपने स्टार्ट किया जॉय को, बट क्या आप बचपन से ये करना चाह रहे थे? आई मीन, व्हेन डिड यू जस्ट गेट एन आइडिया टू जस्ट स्टार्ट एन एनजीओ? और क्या थॉट क्या था, मतलब पीछे? आप नॉर्मल लाइफ जी सकते थे, आप नॉर्मल जॉब कर सकते थे, राइट? बट आपका क्या थॉट था? व्हाट जस्ट ड्राइव्स यू दैट यू हैव टू गो एंड डू समथिंग फॉर पीपल? तो बेसिकली मुझे सोशल फील्ड के बारे में ज्यादा कुछ आइडिया था नहीं पहले, और ऐसा एक्सपोजर था नहीं कभी, मतलब मेरे हिसाब से मेरे को, और खासकर फैमिली में कोई था नहीं जो जुड़ा हो. एंड आई वाज फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, बट मैंने अभी रिसेंटली BSW अपनी कंप्लीट करी है, बैचलर्स इन वर्क. तो बेसिकली ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था, बट व्हेन आई वाज इयर्स ओल्ड, तो 18 जब मैं हुआ, तो उसी दौरान उत्तराखंड में आपदा आई थी. राइट, 2013, बैड ईयर. वो एक बहुत वर्स पीरियड था, और वो एक ऐसा टाइम था सबको अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए था और सबको निकलना चाहिए था. लाइक मैं जितना कर सकता था, मैं एक एनजीओ था उसका कोलैब किया,
और मैं उनके यहाँ पहुंचा एंड आई आस्क्ड देम दैट आई वांट टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी. So that is my first ever exposure of working as a social worker, joining an NGO, volunteering for someone. So that was the first ever case that I started. वहां से I was already वो हुआ and मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में चला गया. बट से जब मैंने अपना किया and I was quite like मेरा मेंटल स्टेट लग रहा था कि लाइफ में मनी इज नॉट द ओनली थिंग. लाइफ बहुत कुछ और चीजें भी हैं और खासकर पहाड़ों की बहुत मुश्किल है. तो बहुत ज्यादा मुश्किल है. तो मुझे फिर बस यही बहुत ज्यादा कनेक्ट करता है इसके साथ. एंड इंजीनियरिंग खत्म होते ही मैंने ये जो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट था अपने घर के आगे फोड़ा कि ठीक है, आई एम नॉट परसुइंग माय फ्यूचर इन इंजीनियरिंग एंड आई वांटेड टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी एंड फॉर द उत्तराखंड स्पेसिफिकली. So it was a big shock for my family also because हाँ मुझसे आने वाले हैं. हाँ तो बहुत मुश्किल था घर में राइट. वो भी तो मतलब तो हाँ, आप बोल रहे हैं कि जब एक ऐसा हमारे साथ मिस हैपनिंग हुई थी 2013 में, जब हम सब लोगों को एक शॉक लगा था और वो बहुत ही बुरा टाइम था, तो उस टाइम पे आपको लगा कि नहीं, मतलब मुझे कुछ और करना चाहिए, मुझे सोसाइटी के लिए करना चाहिए कुछ. वो एक काइंड ऑफ ट्रिगर था आपके लिए, राइट? वो सबसे बड़ा ट्रिगर था मेरी लाइफ का जिसने मेरे को सोशली एक्टिव करा. एंड उसके बाद कहीं नहीं, 18 के बाद से लेके आई डिड नॉट स्टॉप. उसके बाद तो बस थोड़ा टाइम मैंने वॉलंटियरिज्म सीखा, काम किया, समझा चीजों को. मेरे को फील्ड जॉब में बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया एंड जिस वजह से मुझे काफी नॉलेज थी स्टार्टिंग से. एंड देन like 5.5 years back मैंने अपना एनजीओ फाइनली स्टार्ट. कि मुझे अब करना और यही फुल टाइम करना है. वाह, मतलब ये आपको मुझे लग रहा था कि मे बी दिस वाज योर ड्रीम फ्रॉम चाइल्डहुड कि ऐसे करना है और प्रोफेशनली, बट वी वर वेरी क्यूरियस कि आप प्रोफेशनली आपका क्या है, मतलब what are your educational qualifications and what are you doing right now? I mean, professionally you have some profession or you are just running this NGO and doing this social work? If I talk about my education, I've done my schooling from Dehradun itself and then I've done my engineering from mechanical background. Then the field shifted to BSW, Bachelor's in Social Work, for 3 years. And then अभी मैं full time joy को run कर रहा हूँ. This is the only full time. So that's full time आप इसी को दे रहे हैं. तो so ये एनजीओ स्टार्ट करने के लिए हमें ये बैचलर ऑफ सोशल वर्क करना ही पड़ता है? इज दैट कंपल्सरी? Not earlier and not even if you do it right now this year then also no. Next year जो भारत सरकार है वो एक रूल निकाल रही है कि अगर आपको एनजीओ रजिस्टर करना है तो आपको आपके जो कोर मेंबर्स हैं, जो लोग फाउंडिंग मेंबर्स बोलते हैं, तो उनमें से 3 लोगों को मास्टर्स इन सोशल वर्क या बैचलर इन सोशल वर्क करना कंपलसरी है. ओके. ऐसा है ना कि आप फील्ड में अच्छा कर सकते हो बट एजुकेशन कहीं ना कहीं आपकी है. The education really polish you sometimes कि हाँ, this is also a right way. You're doing it this way, but do it this way. This is more efficient. So इसीलिए अब लास्ट बहुत टाइम से DS और MSW बहुत आने टाइम पे बहुत राइजिंग एक कोर्स है. And when you have thought of doing this, you know, like professionally, legally, तो आप yes. It's like am I losing? Yes, it's like it's like starting an organization which is responsible for society. So it's better to have education related to it. That's true, and that is what I was thinking also. मैंने तो अपना बोलने के लिए अगर इंडिया में क्या आप ग्रेजुएटेड हो तो मैं बोल सकता था मैं ग्रेजुएटेड हूँ, बट मैंने डबल ग्रेजुएशन करा. मुझे था कि नहीं, मुझे BSW करनी है. और हालांकि मैं बैकग्राउंड के बाद मैं MSW में शिफ्ट हो सकता था, बट मैंने कहा नहीं, आई एम नॉट डूइंग एनी जॉब अंडर समवन, तो मुझे इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि पढ़ाई कब करूंगा, कौन मेरी एजुकेशन बैकग्राउंड कोई देखेगा, कोई उस क्वालिफिकेशन में मुझे जज करेगा. नहीं, बट मुझे था
फ्रॉम डे वन मुझे अपना जो बैकग्राउंड है वो उसको प्रॉपर पॉलिश करना है, लाइक इंजीनियरिंग के बाद BSW, एंड नाउ आई विल बी सून हेडिंग इट फॉर MSW आल्सो, मास्टर्स इन सोशल वर्क। वाह वाह वाह, ग्रेट टू नो दैट। अच्छा, आपने प्लांटेशन भी किया था बहुत बड़े लेवल पे, राइट जय? राइट। Please tell us something about that. What was the experience? How did you collect all the people around? So I'll tell you about our plantation and it's very interesting actually, क्योंकि जॉय में मेरी खुद की एक्सपर्टी थी प्लांटेशन में। तो हाँ, जॉय ने फर्स्ट ईयर से एक इवेंट करना स्टार्ट करा, जिस इवेंट का नाम है प्लांटाथॉन, प्लांट अ प्लांट, थॉन। यस यस, हाँ हाँ, हाँ। तो देखा मेरा मैंने। स्टार्ट ये मेरा एक ड्रीम था जब मैंने एनजीओ स्टार्ट किए हैं थोड़े से, कि मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है अ, जहाँ पर सब आ सकें, अम्ब्रेला जिसके नीचे सब खड़े हो सकें साथ में। ट्रू। तो ये एक बहुत ही सक्सेसफुल प्लान रहा। तो मेरा पहला प्लेटफॉर्म जॉय का पहले साल में ही हो गया था। जॉय का जब वाह, पहला तो मैंने एक प्लेटफॉर्म के नाम से एक ड्राइव करी, और मैंने देहरादून के सारे एनजीओ, सारे इंस्टीट्यूट, सब सब ग्रुप्स को इनवाइट किया, and we did not charge a penny. We did not charge a penny, and we said it's all free of cost. The plant is free. We will give you all the facilities like food, everything. बस थोड़ा सा शहर से बाहर आओ हमारे साथ और एक प्लांटेशन ड्राइव करते हैं। एंड आई विल टेल यू, माय फर्स्ट प्लांटेशन ड्राइव वी हैड मोर देन 8 ऑर्गेनाइजेशंस विद अस, जो कभी देहरादून में वाह। होता नहीं। ये हाँ। हम्म कभी हम्म जुड़ के काम करने का एटमोसफेयर नहीं था। पहला हम्म। साल 8 ऑर्गेनाइजेशंस, दूसरा साल 18-19 ऑर्गेनाइजेशंस, थर्ड ईयर वी वर 27, फोर्थ ईयर वाह, वी वर 42, ओ, या एंड फोर्थ ईयर वाली जो हमारी प्लांटाथॉन थी वो इतनी सक्सेसफुल थी कि मुझे सीएम साहब का खुद फोन आया था, कि मतलब उनके प्राइवेट फोन से मुझे फोन आया था कि हाय जय, मैं मतलब सुरेंद्र सिंह रावत बोल रहा हूँ और मुझे ये इवेंट के बारे में पता है, एंड आई एम बीन हाँ, फॉलोइंग लॉन्ग टाइम एंड आई वांट टू कम। एंड उन्होंने अपने वाह, सारे इवेंट वाव, सुबह सच। हमारे इवेंट में ज्वाइन किया, एंड दैट टू इट वाज वेरी फार ऑफ, वो एयरपोर्ट के पास था। और हम्म, उस हाउ event स्वीट। के अंदर 1,000 से ज्यादा लोग आए थे, 1,000 यंगस्टर्स थे जो क्योंकि बारिश हो रही थी पूरा भीगे हुए थे, देहरादून से भीग कर टू व्हीलर्स पे आ रहे थे। मोर देन 8 कंट्रीज के बच्चे आए थे उस टाइम पे, एंड सीएम साहब एंड एवरीवन, वी हैव अ ब्यूटीफुल ग्रुप विद अस जो हमारे साथ 5 साल से साथ जुड़ा हुआ है। उसका नाम है वॉन्डरर्स, वो एक बुलेट राइडिंग हम्म ग्रुप है। तो वो उनका हम्म, कहना है कि हम पूरे बुलेट चलाते हैं, फ्यूल उड़ाते हैं, तो एक हमें ड्राइव करनी है जो एनवायरनमेंट के लिए हो, वो है प्लांटेशन। सो वो हमारी फैमिली से वाह, जुड़े थे 5 साल से। एंड जिस ईयर हम लोगों ने प्लांटाथॉन में, आपको बताया कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आए थे, उस ईयर हम्म, उस ईयर ऐसा था कि हमने एक एशिया रिकॉर्ड बनाया था विद 3-4 ऑर्गेनाइजेशन, अमेजिंग। ESR, एंड वो एक एशिया रिकॉर्ड है। We planted 2,00,000 trees in 10 minutes. वाव, वाव, दैट्स सो ये नहीं पता था कमेंडेबल। मुझे। सो हाँ, so ब्यूटीफुल। अब वो शायद गुवाहाटी के आर्मी स्कूल है, वो लोग ब्रेक करने का से प्लान कर रहे हैं, हाँ क्योंकि हाँ हाँ, ओके। awarded by Limca Book of Records, Guinness Book of Records, Indian Book of Records. So ये डोईवाला एरिया में हुआ था, and it was a beautiful time because 2,10,000 पेड़, वो भी फ्रूट बेयरिंग ट्रीज ओनली। हमें ये था कि हाउ डिड वी मिस दिस? ये तो हमें पता ही नहीं नंबर्स था। तो मुझे नहीं पता था, बट मैंने बहुत सारे यंगस्टर्स रियली। देखा था, मतलब पिक्स में देखा है। बट सीरियसली आई रियली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, पक्का, नेक्स्ट आई टाइम तो। We all want to be a part of this. You're inspiring a young generation, so this is very commendable job. थैंक यू, थैंक वाह, यू। एंड ये एक ऐसी चीज है जिसमें हम कंपटीशन कर रहे हैं रिकॉर्ड ब्रेक करने का। इजंट दिस सो अमेजिंग? सोची, तूने 2 पेड़ लगाए हैं, तुमने, मैं बोलूंगी नहीं मैं 4 लगाऊंगी, नहीं तुम बोलोगे नहीं मैं 5 लगाऊंगी, ठीक है? वाह। तो इजंट दिस अमेजिंग? समवेयर इट्स बेनिफिटिंग द सोसाइटी, द एनवायरनमेंट, द होल पॉपुलेशन। वो भी है, कंपटीशन तो है ही तनु, बट यू नो व्हाट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इज व्हेन यू आर अलोन, यू हैव स्टार्टेड एन एनजीओ एंड देन पीपल आर जस्ट कमिंग टू यू। हर कोई आके आपके साथ जुड़ रहा दिस है इज अ और हर ब्यूटिफुल साल थिंग, आप या। अपने ही बेंचमार्क्स को ब्रेक कर रहे हैं।
पहले कुछ लोग आए, फिर जैसे जय ने बताया फिर कुछ और लोग जुड़ते चले गए और सारे एनजीओ साथ में आए। कितना कितना अच्छा लगता होगा, मतलब आप सुकून से सो सकते हो, है ना जय? कितना तो कितनी अच्छी फीलिंग थी ये। आई टेल यू, सो जो जो वो ये हमारा एक मेला होता है एक तरह का, प्लांटाथन, आई कॉल इट अ मेला, क्योंकि हाँ भीड़ होती है। एंड मतलब मैं एज अ जय शर्मा, एज अ ओनर ऑफ दिस एनजीओ, मैं खड़ा जब होता हूँ उस जगह पे, तो सुबह 5 बजे मेरे बहुत टेंशन में होता हूँ कि क्योंकि मुझे पता है कि पूरा हफ्ता बारिश होती है। हरीला हरीला हम मनाते हैं उत्तराखंड वालों को, सबको पता है। हाँ हाँ हाँ। तो जैसे ही ये हफ्ता शुरू होता है, मेरे को बहुत टेंशन होती है कि बारिश आने वाली है। एंड यू वोंट बिलीव कि 1,000 लोग अगर आते हैं तो उनमें से एक भी इंसान ऐसा नहीं होता तो टेंशन ले रहा होता है यार मुझे कोई शेड मिल जाए, मैं उसके नीचे बारिश के नीचे खड़ा होना। हर बंदा पूरा भीग रखा होता है। ही इज ईटिंग ऑल्सो समवेयर। यंगस्टर्स एक कॉर्नर बना रखा होता है वहां पर, वो बन समोसा बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है। बहुत फूड्स का अलग एक एक काउंटर्स और रखे होते हैं। एंड दे आर ऑल टायर्ड, पूरा मिट्टी में पूरा हाथ पैर उनके पूरा खराब हो रखे होते हैं। एंड दे जस्ट सिंपली एंजॉयिंग इट। एंड एवरी ईयर हमारी फैमिली बड़ी होती जा रही है। इवन लास्ट ईयर लॉकडाउन लॉकडाउन हो गया था, एंड वी वर वेरी सैड अबाउट इट कि हमारा जो ये इवेंट है बिल्कुल, क्योंकि सोशल गैदरिंग का सारा इवेंट था, कि कैसे होगा। बट हम कभी एक बहुत अच्छा तोड़ निकाला, और वो ये था कि हम लोगों ने लोगों से ऑनलाइन रिक्वेस्ट मंगवा ली थी और उनको घर हम्म। तक जाके पेड़ देके आए थे कोविड के दौरान, कि आप अपने घर में, घर के बाहर के आसपास जाके पेड़ लगाओ, बट जस्ट डोंट स्टॉप, बिकॉज वी डोंट वांट टू स्टॉप प्लांट। ये सबसे अच्छा काम कर रहे हैं जय आप। हमारे बहुत धरती को बहुत, बहुत जरूरत है, प्लांट्स की तो बहुत ही ज्यादा जरूरत है। क्योंकि बहुत राइट। इस लेवल पे डिफॉरेस्टेशन हो रही है ना। या सो यस। वही है, उत्तराखंड बहुत सेंसिटिव जोन है। अगर इसे नहीं, वी आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज, और वी कैन से वी आर ऑन द एज राइट नाउ, कि अगर हमें थोड़ी और गलती और उत्तराखंड का एनवायरनमेंट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो यस, ये सबको मिलके चलने की जरूरत है। आप और पहाड़ों को बचा रहे हैं एक तरह से। जी जी जी। बिल्कुल अच्छा व्यू। बिल्कुल। तो जय, ये एनजीओ स्टार्टअप करना कितना डिफिकल्ट है स्टार्टिंग में? मतलब क्या हर्डल्स आते हैं एक एनजीओ को स्टार्टअप करने में? आई बिलीव एनजीओ स्टार्ट करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, बट एनजीओ को रन करने में एंड कंटिन्यू हम्म बहुत प्रॉब्लम आती है। देख, ऐसा 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 है कि जॉय का, जब जॉय स्टार्ट हुआ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, इट वाज लाइक अमेजिंग। एंड मुझे हम्म पता ही नहीं होता था कौन आ रहा है कौन जा रहा है, नाम ही नहीं याद, क्योंकि इतने बच्चे आ रहे हैं। ग्राफिक, आईएमएस, एक जैसे एक कोई बच्चा था आईएमएस का, उसको यहाँ का माहौल पसंद आया कि यंगस्टर्स हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, वो अपने फ्रेंड्स लेके आया, तो यहाँ स्टार्ट हो गया। यहाँ चैप्टर्स बन गए कि आईएमएस की पूरी टीम आ रही है, ग्राफिक की पूरी हम्म टीम आ रही है, डीआईटी की पूरी टीम आ रही है, बहुत सारी ऐसी टीम्स बननी शुरू हो गई। तो आई बिलीव हम्म। कि कंटिन्यूटी रखना सबसे एक मुश्किल टास्क है टाइम पे। हम्म। होता था अगर जॉय थोड़ा सा हल्का हो गया है, काम नहीं कर पा रहा है, या कुछ कुछ एग्जाम्स टाइम आ गए हैं एंड वी आर नॉट एक्टिव, हम्म। इट्स अ tedious task, बिकॉज आप यू नीड वॉलंटियर्स फॉर एवरी वर्क, राइट, एंड फॉर एवरी फील्ड। बिल्कुल। अगर आपकी हम्म। में कुछ लोग हैं जिनको बहुत नॉलेज है, दे टेक चार्ज ऑफ दैट, बट अचानक से उनकी कहीं प्लेसमेंट हो जाए, यहाँ को कहीं चले जाए, तो आपको राइट। आप उन बच्चों से, जो भी नए बच्चे आए हैं, उनको सिखाते रहो। क्योंकि वो, हम्म मैं आपको बताता हूँ कि मेरे एनजीओ में वुमेन हेल्थ एंड सैनिटेशन मेरी वजह से स्टार्ट हुआ। मतलब हम्म। लड़का होके मुझे एक, मैं आई टेल यू द इंसिडेंट बिकॉज वो बहुत सेंसिटिव है, बट वो एक इंसिडेंट है, मैंने एक बच्ची में देखा था, और वो उसने मुझे लिटरली बहुत शेक कर दिया था। एंड मुझे उस दिन लगा कि नहीं, मतलब दिस इज समथिंग दैट इंडिया नीड्स टू रियली वर्क ऑन है। अगर हम बिल्कुल, दिस इज वेरी हमारा सीरियस इशू। है, ये हमें करना पड़ेगा। फिर मैंने पहले खुद का रिसर्च कर, पहली मीटिंग मुझे अभी भी याद है, मैंने जब जॉय की वॉलंटियर्स की ली थी गर्ल्स के साथ, तो बहुत कंफर्टेबल तो नहीं थी, क्योंकि हाँ ऑब्वियसली मैं डायरेक्टली लड़कियों से जाके बात नहीं कर सकता पीरियड्स के बारे में, बट अब थोड़ा अवेयरनेस हो गया है। एंड आई सी हमारा जो ऑफिस है वो बहुत फ्रेंडली है इस मामले में। दे ऑलवेज सैनिटरी नैपकिंस केप्ट इन देयर, एंड वी ऑलवेज कीप इट वेरी हाइजीनिक। एंड स्पेशली जो हमारे बहुत ध्यान रखते हैं, अगर बाय एनी चांस पैड्स खत्म हो जाते हैं, तो इट्स द बॉयज ड्यूटी दैट दे विल कीप इट इन द ऑफिस, बिकॉज वो एक ऐसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए ऑफिस का कि
वो एक टैब बिल्कुल है, वो नहीं, वो स्टीरियोटाइप True. बिल्कुल। Don't make it Hmm. taboo, right? या सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट सेइंग अबाउट इट कि मेरे एनजीओ में बहुत एक कंफर्टेबल माहौल है इस चीज के बारे में। Very good. वेरी नाइस, which is वेरी नाइस। तो जय, आपने जब ये एनजीओ स्टार्ट किया तो क्या आपको एकदम मतलब सोसाइटी का सपोर्ट, आपके वॉलंटियर्स वगैरह को लाइन अप करने में क्या कितना टाइम लगा था, या स्टार्टिंग से ही आपको एक सपोर्ट मिल गया था सोसाइटी का, तो इट हैड रन स्मूथली? Yes. तो स्टार्टिंग से मैंने ऐसे बताया कि मैं बहुत ग्राउंडेड काम, मैं स्टार्टिंग से फील्ड वर्क पे था काफी सालों से, तो मुझे वॉलंटियर्स में और मतलब वॉलंटियर्स जोड़ने में या सोसाइटी को अपने साथ जोड़ने में मुझे दिक्कत नहीं थी। एंड मेरी और पीपल से दैट एंड आई विल से दैट वो खुद की तारीफ नहीं करूंगा, बट हाँ मैं बहुत जल्दी घुल मिल जाता हूँ सोसाइटी के बीच में। इट्स फॉर मी, पीआर स्किल्स अच्छी हैं आपकी। मैं के घर में जाता हूँ, मैं किसी के घर में बैठ के किसी मतलब आई हैव दैट स्किल्स कि वो मैं बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाता हूँ, बहुत जल्दी वो मुझसे कनेक्ट कर पाता हूँ, ट्रू। बहुत जल्दी मैं कंफर्टेबल कर देता हूँ लोगों को। तो मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं आई। एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू से कि मैंने इतना छोटा एज में एनजीओ खोल दिया था कि आई वाज पैम्पर्ड लाइक अ किड। कई सरकारी डिपार्टमेंट में जब मैं बात करने आता था कि मेरा नाम जय शर्मा है, मेरा एनजीओ है और मुझे ना एक प्लांटेशन ड्राइव करनी है, मैं ऐसे ही छोटा था बहुत, तो हाँ. you have an NGO or like, oh, like you are very young and always pampered, very या and हाँ. कभी अवार्ड सेरेमनीज होती तो आई वाज ऑलवेज ऑन देयर नेम कि अरे जय इज आल्सो डूइंग इन कैटेगरी, लाइक इसको करो। आई वाज दैट्स सो एनकरेजिंग, दैट्स सो Right. एनकरेजिंग। आई वाज ऑलवेज पैम्पर्ड। सो वो जो पैम्परिंग थी, जो ये पूरा उत्तराखंड मुझे पैम्पर करता था, वो मेरे लिए बहुत पॉजिटिव था। मतलब वो मुझे हमेशा पुश हाँ. चलते रहो, पीपल आर लाइकिंग इट एंड दिस इज ऑल व्हाट आई वांट टू स्प्रेड पॉजिटिविटी एंड आई वांट हाँ. कि बिल्कुल। मतलब हम सबको साथ लेके चले। तो Yeah. टू बैक आल्सो आई वाज मेड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पैसिफिक मॉल। तो Wow. मुझे छोटे छोटे अचीवमेंट्स ने, लोगों के कमेंट्स ने बहुत मोटिवेट किया थ्रू आउट कि नहीं, यू शुड कंटिन्यू एंड यू आर मेंट। हाँ, जनरली लोग ये सोचते हैं ना कि एनजीओ, अच्छा ये तो 40s के बाद का अफेयर है, राइट? How can you Yeah. start या an NGO? बिल्कुल। Because it really needs networking और social experience. Then only you can start. और अभी तुम बच्चे हो, ये सारे कमेंट कोई भी एक्सपेक्ट कर ही सकता है, राइट? तुम बच्चे हो, ये मुझे कमेंट नहीं पड़ता था, क्योंकि मैं इतना ज्यादा मतलब मैं बताऊं, मैं मतलब आई हैड अमेजिंग स्किल्स। मैं किसी मीटिंग में अगर बैठता था तो पहले तो वो मीटिंग में सारे 40-50 इयर्स के बुढ़े बुढ़े लोग होते थे मेरे साथ के, मेरे पापा। हाँ. True, I can imagine. एंड जब मैं छोटा सा बच्चा में बैठता था तो किसी को लगता था कि ये किसी के साथ में आया हुआ है, ठीक है? तो साथ में होता था। Okay. तो द मोमेंट आई टू स्पीक, देन दे यूज्ड टू रियलाइज कि हाँ, ये है कुछ, ये आया है, मतलब मीटिंग में हाँ. कि बच्चा कुछ बोल रहा है और बहुत सही बोल रहा है। और Right. क्योंकि मैं कभी कभी कड़वा बोल देता था या बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता था, तो लोग हाँ. इसलिए माइंड नहीं करते थे क्योंकि मैं छोटा था सबसे। तो Okay. कभी घर वालों ने ये नहीं कहा कि गो हैव अ जॉब, प्रॉपर जॉब, लाइक हाँ, या आप यहाँ एनजीओ पे क्यों ये रन कर क्वेश्चन रहे जरूर हो? आता है। हाँ, फैमिली का। हाँ, बिल्कुल। तो ये What was the reaction? तो फैमिली वाला लास्ट ऐसा था कि अब मैं मुझे इंजीनियरिंग के बाद अपनी मास्टर्स के लिए जाना था, और मास्टर्स से जस्ट पहले मैंने घर वालों को आके बोला कि आई एम नॉट कंटिन्यूइंग, लाइक मेरे डैड एक्चुअली सऊदी अरेबिया में एंड मुझे उन्हीं की फील्ड में जाना था। तो वेरी सॉर्टेड फॉर मी, so I just had to finish my education and the next very day I would be in abroad working for a company. तो मेरे घर में बहुत सॉर्टेड सीन था, बट अचानक से मेरा जब इंक्लाइन बहुत बदला तो ये एक बहुत बड़ा एक Change. था कि ये क्या क्या बोल रहे हैं, ये क्या कर रहा है, तो आइडिया नहीं था। तो स्टार्टिंग में तो वो माने ही नहीं कभी, बट विद टाइम मैंने इस हिसाब से उनको बनाया कि धीरे धीरे उनको, तो दे गिव मी 2 year टाइम, 2 साल का उन्होंने मुझे टाइम दिया था कि अगर इसमें कुछ कर पाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज लीव। तो मेरे पास
स्टार्टिंग के 2 साल ऐसे थे कि अगर मैंने इसमें कुछ नहीं किया तो मुझे छोड़नी पड़ जाएगी ये फील्ड। एंड वॉज एक्चुअली मेरे लिए वो बहुत बुरी बात थी कि ये नहीं, मैं ये तो नहीं कर सकता, मुझे नहीं छोड़। तो 2 साल मैंने लाइफ के से ऐसे निकाले हैं जब मैं एक एक दिन में सिर्फ 2-2 घंटे 2 घंटे 1.5 घंटा सोता था। एंड मेरा ऐसा ऐसा टाइम आ गया था कि मैं मेरी बॉडी बहुत वीक हो गई थी। आई वाज माय बॉडी डिड नॉट रिस्पॉन्डेड वेल, क्योंकि मेरे दिमाग में एक तो बहुत कीड़ा और एक बहुत पागलपन था कि कुछ करना है, प्लस मेरे दिमाग में एक राइट का कि उन्होंने मुझे 2 साल का टाइम दिया, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मुझे छोड़ना पड़ेगा, मुझे अपनी फेवरेट फील्ड छोड़नी पड़ेगी। तो मैंने बहुत काम किया, मैंने कहीं बहुत बहुत दिन ना सोकर और बहुत मेहनत करी है इस फील्ड में एंट्री लेने के लिए। सो तब मेरा या तो बस उसके बाद प्रेशर मेरी फैमिली की, मम्मी पापा के, मैंने स्टार्टिंग के 2 साल में उनको प्रूव कर दिया था that I am meant for this field and I can do wonders अगर मैं इस फील्ड में कंटिन्यू करता हूँ तो मेरे मॉम एंड डैड ने मुझे 2 साल के अंदर खुद मुझसे अपने मुंह से बोल दिया था कि ठीक है, आई थिंक तुम इसी फील्ड में बने हो एंड कंटिन्यू योर फील्ड। बट ऑब्वियसली रिलेटिव्स एक बहुत बड़ा एक सबसे बड़ा एक होता है कि प्रेशर क्रिएट करते हैं या राइट, क्योंकि आपकी एज में जनरली बोलते हैं नहीं, हैव अ जॉब एंड गेट मैरिड एंड ये वो, लड़कों पे स्पेशली जॉब का ज्यादा प्रेशर होता है ना। बट पता है, अगर कोई मेरा रिलेटिव ऐसा करता ना तो मैं तो पहली ऐसी लड़की होती जो इतना एनकरेज करती, क्योंकि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, सीरियसली अबाउट मनी सीरियसली आप इतना अच्छा काम कर रहे हो जो कोई नहीं कर रहा है आपके आसपास, है ना? तो कितना अच्छा है, मतलब अगर आप मेरा रिलेटिव होते तो बड़ा एज अ रिलेटिव एवरीवन शुड फील प्राउड, यू नो, मोर देन प्राउड। मुझे अभी भी प्राउड फील हो रहा है कि मैं देहरादून से हूँ। मुझे भी हो रहा है कि मैंने विजिट किया था। ऐसे ऐसे ही रिलेटिव्स हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ, कोविड के दौरान जब मैं काम कर रहा था तो इट वाज द फर्स्ट स्टेप दैट वाज बीइंग टेकन एंड द फर्स्ट ग्रांट, मनी ग्रांट जो मुझे मिली थी सबसे अच्छी, और सबसे ज्यादा जो बैकअप मुझे स्टार्टिंग में पुश दिया वो मेरे रिलेटिव्स ने ही मुझे दिया, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे दिया। मेरे बहुत सारे अब्रॉड में ही सेटल्ड हैं तो, और फ्रेंड्स भी। So I have a huge amount of population, a huge amount of group that is settled in abroad. बहुत सारी कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूएस। तो सबसे पहला मुझे हमें बताया एंड यू आर द राइट पर्सन। तो अच्छा, यहाँ हाँ, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है जय, आपने अभी बोला कि आपके फ्रेंड्स हैं, वेल सेटल्ड हैं, सब कुछ है, माइट बी इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ फंड्स। तो जो लोग के पास ऐसा नहीं सोर्स है तो क्या वो एनजीओ ओपन करने का सोच सकते हैं? देखिए, जो एक अपने में एक यूनिवर्स है बहुत बड़ा। मैं ये बात बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ। जिन लोगों को लगता है कि एनजीओ को कैसे ही फंड मिलता होगा या एनजीओ चलाना बहुत मुश्किल है, फंड्स नहीं मिलेगा, तो फिर वो आपके, क्योंकि ऐसा आई टेल यू, लास्ट ईयर ऑल्सो जब पहली बार जिंदगी में कोविड नाम की कोई कुछ चीज सुनी लोगों ने, तो मेरे पास जो फंड्स है ना वो फ्लड की तरह आया था। मैंने नहीं मांगा, मैंने पिछले साल फंड मांगा ही नहीं, अपील नहीं करी थी, इस साल अपील करी थी और इस साल भी फंड मेरे पास फ्लड की तरह आया। इट इज ऑल वो क्यों आया? वो जय शर्मा के नाम पे आया, क्योंकि और जॉइन की रेपुटेशन इस पूरे उत्तराखंड एंड वर्ल्ड वाइड ऐसी बना ली है कि लोगों को पता है कि ये लोग मतलब ना पैसा और ना कुछ कैसा करेंगे, एंड दीज आर द पीपल हु विल एक्चुअली वर्क ऑन द फील्ड। हाँ, हमारा पैसा जो हम डोनेट कर रहे हैं वो राइट जगह जा रहा है और सही they have seen it live, yes. वाह। अच्छा चलिए जय, अब ये बताइए कि कोविड के दौरान मैंने सुना आपने 100 बच्चों को अडॉप्ट किया है। प्लीज टेल अस अबाउट दिस, दिस इज रियली अ गुड थिंग टू शेयर। Wonderful. Yeah, so first I'll clear a small statement, that is मीडिया जब किया, देहरादून की मीडिया को बताया था, बाकी ग्लोबली अपने आप इट वेंट लाइक अ फायर ग्लोबली। तो मैंने ये बताया था कि जॉय और बच्चों को फॉस्टर पेरेंटिंग कर रहा है, और हम 100 बच्चों के फॉस्टर पेरेंट्स बनेंगे। वी विल टेक केयर ऑफ देम। अब उनकी एजुकेशन, उनका खाना, उनका सब कुछ
जितना है वो सारा ध्यान देंगे। तो इसका नाम होता है फॉस्टर पेरेंटिंग, जो इंडिया में बहुत फेमस वर्ड नहीं है, बट नॉट अडॉप्शन। अडॉप्शन एक बहुत और बहुत लंबा, राइट। हाँ तो वही वाली बात है कि मुझे ये इट इज नॉट अडॉप्शन, इट इज अ फॉस्टर पेरेंटिंग। सारे बच्चों का खर्चा उठाता है, फ्रॉम एजुकेशन, फ्रॉम एवरी बैकग्राउंड, राइट। तो Okay. तो ये आइडिया भी मुझे कोविड के दौरान आया, व्हेन आई वाज वर्किंग फॉर कोविड। तो मुझे, तो हम पहले हमने ऑक्सीजन सिलेंडर्स में काम किया, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स वहाँ पर, so we were shooting, and then it was all going. Then we second that we started was ration distribution. तो राशन की बहुत, क्योंकि उत्तराखंड का मेजर जो रीजन है वो डिपेंड करता है टूरिज्म के ऊपर। टूरिज्म बंद तो उनके पास, और लास्ट साल से लेके इस साल तक अभी तक टूरिज्म अच्छे से एक्टिव नहीं हो पाया। साल बहुत एक्टिव होता है, बट नहीं रहा है, बहुत प्रॉब्लम फेस कर रही है हमारे लोकल लोगों को। तो इस दौरान Yes. पहाड़ों में मैंने काफी टाइम स्पेंड किया है। मैंने 6 महीने और 6 महीने रहता था। तो हाँ हाँ 6 months in Kedarnath, months in Dehradun. So like बहुत noise आ रही है, सकता है सारे, can you mute it? Yeah. तो मैं 6 महीने केदारनाथ रहता था और देहरादून। तो हाँ ये 6 महीने केदारनाथ काफी नॉलेज थी, और मुझे पहाड़ों के काफी लोग जानते थे। तो मुझे कॉल्स, यहाँ एक बच्चा है उसके फादर की डेथ हो गई है, नहीं है कि वो कमा पाए, तो हाउ कैन। तो स्टार्टिंग में कि मुझे ये काम नहीं पकड़ना चाहिए, ये बहुत लंबा काम है और ये बहुत रिस्पॉन्सिबल, राइट एंड इसमें बहुत फंड्स रिक्वायरमेंट भी रहेगी, और वो फंड्स के Tanu, be on mute. yeah. So yeah, Am I mute? no. 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 Mhm. Okay. No. Yes. या तो पहले मुझे जब ये बच्चों का आया था स्टार्टिंग में, तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि नहीं मैं ये नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत लॉन्ग टर्म काम है और Right. Big responsibility. हाँ बहुत बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। तो मैंने उस टाइम पे बहुत डरा, बट मैंने ये, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स जो फॉरेन में थे, जो अब्रॉड थे, और रिलेटिव्स थे अब्रॉड में, उनके साथ मैं कंटिन्यूसली एक मतलब लूप में था, क्योंकि वो मुझसे करके पूछते थे कि जय आपका टेल मी हाउ कैन वी हेल्प यू, टेल मी आपका कुछ फंड सही है। उनका मुझे आई एम ब्लेस्ड विद माय पीपल। आई हैव, मैं देहरादून में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, हरकिरत भाई हैं मेरे, और उनके एक पार्टनर थे, भैया थे, और बहुत सारे लोग थे उनमें। हमारे वॉन्डर्स की जो फाउंडर हैं वासिन भाई, ये सब मेरे एक बैकबोन थे। अगर इतना काम किया कोविड के दौरान तो इनकी वजह से किया, क्योंकि एक बहुत बड़ा मेरे पीछे बहुत अच्छा एक सपोर्ट था कि तू जो करना है कर, हम तेरे साथ खड़े हैं। तो मैंने इनसे शेयर किया कि मुझे बच्चों का ऐसे फोन आया है, उनको मेरी बहुत जरूरत है। तो उन्होंने कहा जस्ट गो फॉर इट, लाइक अभी आपको 2 केस आए, 2 केस पकड़ो, और यू वोंट बिलीव मैंने उनको फोन किया केस स्टडी करने, क्योंकि ऑब्वियसली हम ऐसा नहीं करते कि फोन आया और कर लिया। तो वी टेक द केस, पहले हम प्रॉपर वेरीफाई करते केस है कि नहीं है, एंड देन वी प्रोसीड विद इट। और वही हुआ कि हमने प्रोसीड, एक दिन में इंफॉर्मेशन आई, एंड द वेरी थर्ड डे और फोर्थ डे उन सबके अकाउंट, बच्चों के स्कूल फीस पे हो गई थी पूरे साल की, एंड they did not have to stop for the studies. हमारा यही मेन एम था कि आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, बस कुछ भी करके। तो जैसे जैसे हम केस करते गए, आज भी हमने एक बच्चे की पढ़ाई पूरी 1 साल की फीस भरी है। तो ऑब्वियसली ये चल रहा है, एक बहुत लंबा प्रोसेस है, और बहुत सारे लोग इफेक्ट हुए हैं। कोविड में ऐसे केसेस जिनके फादर हैं, बट उनके फादर को कोविड हो गया था, और 18-19 लाख रुपए खर्चा हुआ है उनके कोविड के ऊपर, एंड डोंट हैव मनी टू
कि बच्चों को स्कूल भेज पाए, कॉलेज भेज पाए। तो एक बहुत राइट। बड़ा एक प्रॉब्लम है। वाह, जी। this is so beautiful and touching, seriously. Yes, Tanu? Inspiring too, yeah. Very inspiring. So, Jay, tell me, how did this COVID had been difficult for you? I mean, what was your entire experience? कितनी आपको मुश्किलें हुई इस COVID टाइम पीरियड में, क्योंकि ये सभी के लिए बहुत बड़ा एक लॉस लेकर आया था कोविड। तो हाउ डिड यू एक्चुअली हैंडल दिस एंटायर पीरियड? सो फ्रॉम स्टार्टिंग आई टोल्ड यू कि मेरे को जब ये कोविड इंडिया में फैला, बिल्कुल फायर की तरह नहीं फैला था, तो उससे जस्ट 10 दिन पहले मैं खुद कोविड पॉजिटिव हो गया था, क्योंकि मैं कोविड में काम कर रहा था। और मुझे पता है कि बहुत लोग एक लाइन मारते हैं जो नहीं मारनी चाहिए उनको, कि जिन लोगों को कोविड नहीं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कोविड हमें तो होके छू के चला गया होगा। ऐसे नहीं होता। जब कोविड होता है तो पता चलता है कि कोविड हुआ है, हुआ है। क्योंकि वो एक बहुत ही एक दर्दनाक और बहुत डराने वाली सिचुएशन होती है। लोगों की ऑक्सीजन कम जा रही थी और हार्ट बीट नॉर्मल थी। मेरा उल्टा था, मेरी ऑक्सीजन 98 थी थ्रू आउट और मेरी हार्ट बीट 270 280 जा रही थी, जो लोगों की नॉर्मली 100 होती है। तो मुझे बहुत बहुत बुरी इफेक्ट किया था कोविड। और जैसे ही मैं कोविड से रिकवरी हुई, तो यू वोंट बिलीव कि 12 बजे रिपोर्ट आई थी, रात को 12 बजे मेरी रिपोर्ट आई थी नेगेटिव, और सुबह 9 बजे मैं फील्ड पे था, क्योंकि इतना ज्यादा कोविड फैला था। और जैसे लोगों को कोविड होता है पॉजिटिव से वो नेगेटिव होते हैं, वो 10-10 दिन का रिकवरी, अच्छा खाना बट 12 बजे रात को मेरी कोविड की रिपोर्ट आई थी नेगेटिव, और सुबह 9 बजे फील्ड पे था अपने दोस्तों के साथ। तो मेरे बहुत था। एंड थ्रू आउट कोविड के दौरान मैं बहुत बॉडी मेरी साथ नहीं दे पाती थी, बट मैं फिर भी काम करता रहा। एंड देयर हैज बीन टाइम जब हम 2-2 3 दिन नहीं सोए थे, 2-2 दिन। एंड कोविड में 2-3, मतलब कोविड में लोगों को ये नहीं होश होती है कि कहाँ है हम, रेस्ट करते हैं सब लोग, और आप काम कर रहे थे। कि हम लोग अपनी कार ड्रून हॉस्पिटल के बाहर पार्क कर देते थे और गाड़ी के अंदर सोते थे, क्योंकि हमें उस टाइम प्लेटलेट्स रिक्वायरमेंट आती थी, या हमें ऑक्सीजन कितनी रिक्वायरमेंट आती थी, और वो वहीं से होती थी ज्यादातर। हमें पता है कि हाँ ये एक सेंटर भी है शहर में। तो हम रात को 2-2 बजे 3-3 बजे वहां जाके सोते थे गाड़ी के अंदर, कि कभी भी फोन आ सकता। एंड वो एक ऐसा टाइम होता है ना कि जब आपके आपके आई टेल यू अ स्टोरी कि एक बच्चा था 3 महीने का, उसको कोविड हो गया था। एंड डॉक्टर ने उसको बोला था आज रात का टाइम, सुबह होने से पहले पहले अगर आपने प्लेटलेट इसके लिए अरेंज कर लिए तो ठीक है, बच्चा बचेगा नहीं। एंड oh god, such panic situation. पैनिक सिचुएशन, मतलब ऐसा कि बस क्या करें, मतलब पेरेंट्स तो हार मान चुके थे। एंड हमारी बिल्कुल। थी, आप बिलीव करो कि मुझे कॉल आया, 10 मिनट के अंदर हमने डोनर ढूंढा, 10 मिनट के अंदर डोनर आ गया। उसको लेने हम गए अपने, हमारे पास गाड़ियां थी, बहुत सारी कार हमारे पास, हमारी फील्ड पे थी। हमारी कार लेने जा रही है उसे उसके घर पे रात को 2 बजे। 2:30 बजे हम पहुंचते हैं सिनर्जी, एक गाड़ी पहुंचती है, मैं हूँ डून हॉस्पिटल, क्योंकि मैं उस बच्चे के पास ही। हमारी एक गाड़ी उस डोनर को लेके सिनर्जी पहुंची हुई है, उसका एंटीबॉडी टेस्ट करवा रही है, उसका एंटीबॉडी होता है। उसके एंटीबॉडी लेने के बाद हम अपना सोर्सेज निकाल के फोन करते हैं ब्लड बैंक में, वहां उसका ब्लड प्लेटलेट्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। एंड देन उसके बाद वहां से उसका जो प्लाज्मा हमने जब निकलवा लिया, वहां से खुद ही उसका प्लाज्मा लेके भाग रहे हैं हॉस्पिटल की तरफ। एंड 3:30-4 बजे तक प्लाज्मा हमारे हाथ में था, एंड वो बच्चे को चढ़ना स्टार्ट हुआ, एंड वो बच्चा बच गया। तो तो और मेरी हार्ट बीट्स रुकी हुई थी अभी ये स्टोरी सुनते सुनते, सीरियसली। तो हमने एक ऐसा टाइम देखा है ना कि वी कांट टेल यू कि बहुत बुरा समय देखा है हमने। एंड मेरे सबसे डरने वाला, मेरे को तो कोविड हो गया था, मैं टेंशन फ्री था कि चलो एंटीबॉडी आ चुकी है, और मैं बहुत सेल्फ कर रहा था, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि मेरी बॉडी कैसी। उस टाइम पे अगर मैं नहीं काम करता तो मैंने क्यों नहीं किया। तो मेरे लिए सबसे बड़ा रिस्क का पॉइंट था कि मेरे वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, अगर इन्हें कुछ हो गया, अगर इनको ये पॉजिटिव हो गए, तो इनके पेरेंट्स तो मुझे नहीं छोड़ेंगे। बट विद गॉड लोग हमारे बस 300 घरों के अंदर गए हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स लगा आए हैं,
हाँ, एंड माय गॉड व्हाट अ स्टोरी। ये वो स्टोरीज है जिनके बारे में लाइक हार्डली किसी को पता होगा, जिसके ऊपर बीत रही है या जो बिल्कुल। उसके लिए काम कर रहा है या जो डॉक्टर इन्वॉल्व है, सिर्फ उनको ही पता है कि क्या चल रहा है। उनको और and इस half of the population, the saddest thing is half of the population doesn't believe about covid पता है उन लोग को, वो लोग बोलते हैं कि हाँ कोविड कुछ नहीं होता। मैं कोविड के दौरान काम कर रहा था और मैं उस बंदे का, इंसान का नाम नहीं जानता, वो आजकल उत्तराखंड में ही है। तो वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, वो जो बना के डाली कोविड या कोविड के बाद, वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और उसको लाखों लोग, करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। वो भी सेलिब्रिटी की तरह लोग उससे फोटो खिंचा रहे हैं। आई डोंट नो द पर्सन, तो उसको मुझे पता नहीं, मैं ध्यान नहीं देता हूँ। उसने वीडियो डाली कि कोविड नाम की कोई चीज नहीं, सरकार सिर्फ पागल बना रही है और लोग जो मर रहे हैं वो एक ऐसे कि ये तो नेचुरली लोग मरते हैं। एंड I can't believe। people like us who are working in field, people like doctors who have been सीरियसली लाइफ बिल्कुल परवाह करते हुए काम कर रहे हैं, उनको देखो कोविड है कि नहीं है। आप पेंडेमिक को कैसे नकार सकते हो? हाँ मतलब आप ये कैसे बोल सकते हो कि कुछ नहीं है? तो बहुत हाँ, I mean world is dying, how can you ignore this fact? Being an influencer, what message you are giving to the public? सो ये Very sad। ये बात तो है। और हमारी इंडिया बहुत जल्दी रिकवरी मार जाती है इमोशनली और सबसे। अभी आप देखो कि मसूरी पूरा पैक्ड है, नैनीताल पैक्ड है, शिमला पूरा, पूरा इसमें सारी माउंटेन वाली जगह पैक्ड। मैंने वो केम्प्टी फॉल वाली वीडियो देखी थी। सीरियसली True, लाइक seriously। कोविड नाम की कोई चीज थी भी कि नहीं, लोग भूल गए चीज हैं नहीं मतलब। है। मनाली में होटल्स में रूम नहीं है, बेड्स नहीं है। पीपल आर जस्ट रोमिंग लाइक बस अब तो हो गया, वैक्सीनेट हो गए, अब कुछ नहीं हो सकता। बट देयर आर स्टिल सम पीपल रिमेनिंग हु हैवंट गॉट वैक्सीनेटेड। प्लस ये वायरस म्यूटेट भी कर रहा है यार। बी एट होम, बी सेफ फॉर योरसेल्फ एज वेल एज फॉर अदर्स। दिस शुड बी केप्ट इन हियर। And even बट if you are क्या कर सकते। doesn't mean that you will not get COVID. This is not the right thing. Like ये एक बहुत लोगों के दिमाग में कि अगर आपको वैक्सीनेशन हो चुके हैं तो वो कोविड नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हाँ हाँ, ऐसा नहीं है। हम्म। It is not actually a vaccination. It's a immune booster thing. राइट। कि हमारी जो जो एजुकेशन है ना वो बहुत अच्छा नहीं है। मतलब हमारा एजुकेशन हमें उल्टी चीजें सिखाता है। का वैक्सीनेशन बनाने में हमें 18 साल लगे थे। अभी भी कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनके वैक्सीनेशन नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि कोविड की वैक्सीनेशन आ चुकी है। ये है कि आप ये लगवा लोगे तो शायद आप बच पाओ, या आपको हाँ बच पाओ। तब आप कह वही सकते है। हो प्रिकॉशनरी। या Precautionary, maybe you will respond better to corona if you will have after vaccination. That's it. कोई गारंटी जैसी चीज नहीं है यार। आई मीन हाउ कैन यू प्रिडिक्ट दैट बिल्कुल। कुछ नहीं होगा वैक्सीनेशन के बाद? बिल्कुल। और इररेस्पॉन्सिबल पीपल। हाँ सीरियसली। चलिए मूव ऑन। अजय, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? अभी आगे क्या करना है? जय को कि जॉय को? दोनों को। दोनों। तो जय प्लान ये कर रहा है कि मैं भी मास्टर्स का प्लान कर रहा हूँ कि मुझे मास्टर्स करनी है, क्योंकि मैंने देख लिया है कि एजुकेशन मैटर करता है। और जब आप चीजें पढ़ते हो तो आपको लगता है कि नहीं, हम इस तरीके से भी चल सकते हैं। क्योंकि फील्ड में फील्ड वर्क करना एक बात है और उस फील्ड में डॉक्यूमेंट करना एक दूसरी बात है। तो जब आप पढ़ते हो तो आप समझते हो कि डॉक्यूमेंटेशन कितना जरूरी है, या एक एनजीओ कितना बड़ा एक रोल प्ले कर सकता है व्हेन ऐसी सिचुएशन पे कोविड हाँ बिल्कुल की पैटर्न करने में। तो इसलिए डॉक्यूमेंटेशन वर्क बहुत समझना बहुत जरूरी है, जो आप एजुकेशन से ही समझते हो। एजुकेशन आएगा तब आप समझोगे। तो अभी जय तो प्लान कर रहा है कि वो मास्टर्स करेगा। जॉय का फ्यूचर प्लान्स ये है कि वी आर ऑलवेज रेडी टू सर्व आवर नेशन, रेडी टू सर्व। टीम बढ़ रही है धीरे धीरे। उत्तराखंड काफी लोगों ने मुझे इस बार अप्रोच किया है, क्योंकि कोविड में लोगों ने हमारा काम देखा है। काफी ऐसे मोमेंट रहे हैं कि किसी के फादर की ऑक्सीजन ड्रॉप हो रही है और उनके पास 15-20 एंड हमारा रिस्पॉन्ड किया। कोविड में ट्रैफिक नहीं था, कुछ नहीं था, एंड बस कि जस्ट बिकॉज यू केम ऑन टाइम, यू केम within 5, that is। तो
हमारा अभी कोई ऐसा कोई बहुत मोटो नहीं है जॉय का बहुत बड़ा, जैसे बाकी बड़े बड़े एनजीओ के होते हैं कि वन डे वी विल डू दिस, वन डे दैट, नो। क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री, और यहाँ हाँ एक नया टास्क आता है हमारे हमारे किसी दिन कभी फ्लड आ जाती है, किसी दिन कुछ आ जाता है, तो बिल्कुल। बट द ओनली थिंग इज वी आर रेडी, वी आर ऑलवेज रेडी टू स्टैंड विन व्हाट आवर नेशन वांट्स, बिकॉज आई नो कि मेरे पास यूथ की पूरी पावर है, और हम्म मुझे पता है बट कुछ भी, ये तो हाँ इन्हीं ये के, कितना या हाँ ये कितना अच्छा है। लाइक जनरली एनजीओ सिर्फ एक कॉज को लेके काम करते हैं, कोई चाइल्ड डेवलपमेंट पे काम कर रहा है, कोई वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहा है। बट ये कितना अच्छा है कि आप यू आर जस्ट ओपन, लाइक योर टैगलाइन जस्ट ओपन योर सेल्फ इज लाइक यू आर Open yourself. ओपन टू एवरीवन। आप कोई पर्टिकुलर इशू के लिए नहीं है, आप सबको हेल्प कर रहे हैं, फिर चाहे वो कोई प्राकृतिक आपदा हो गई, कोविड हो गया, या प्लांटेशन हो गया, आप सबके लिए कर रहे हैं। मतलब कितनी कितनी अच्छी बात है ये, थैंक है यू सो ना? मच। मैं स्टार्टिंग सबको बोलता हूँ कि मेरी काफी लाइव सेशंस जब होते हैं, मैं सबको बोलता हूँ कि मैंने मैंने एज अ जय शर्मा ने ये एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करा यूथ के लिए कि आप आओ, यू वेलकम्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी किसी चीज में एक्सपर्टी है, मेरी नहीं है, मेरे को नॉलेज नहीं है इस चीज के बारे में, तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको रोक दूंगा कि नहीं आप मत करो। मेरा कहना, हाँ मेरा ये है कि मेरे एनजीओ का ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ये मैं, अगर आपकी एक्सपर्टी है कि मैं डॉग्स में कुछ कर सकती हूँ, यू आर वेलकम, आप आओ। अब आप Wow. लिखोगे और जय शर्मा आपका मेंबर है, यू विल टेक, वाह। यू विल Wow, डू you're व्हाट, supporting every cause. या सो, मतलब आप How आपकी टीम beautiful. में कुछ लोग हैं जो चाइल्ड से रिलेटेड काम कर रहे हैं, उनको उस चीज में इंटरेस्ट है, कुछ लोग एनिमल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, कुछ लोग प्लांटेशन के लिए काम कर रहे हैं। ये कितना अच्छा है। और सब लाइक यू सेड अंडर वन अम्ब्रेला, सब लोग एक दूसरे के साथ मिलके अलग अलग चीजों को एड्रेस कर रहे हैं। मतलब कितनी अच्छी चीज बिल्कुल। है। या सो, बिल्कुल। और सुरुचि, ये एक मतलब एज ए, जैसे मुझे ज्वाइन करना है तो ये मेरे लिए भी बहुत इजी चीज है कि मेरा इंटरेस्ट किसी और चीज में है, और जब मैं वो जाके हेल्प मांगूंगी उस चीज के लिए तो मुझे मिलेगी। इट्स नॉट लाइक कि नहीं हम सिर्फ पर्टिकुलर यू चीज आर में डील नॉट करते हैं तो यू गो टू रेस्ट्रिक्टेड। अनदर एनजीओ। यस, यू आर नॉट या रेस्ट्रिक्टेड, यू the कैन the जॉइन the जॉय। joy defines its motto perfectly. यस सो मेरी एक तो वॉलंटियर, वो यूएस से टेक्सास में रहती है, तो जब वो यहाँ से गई थी हमारे साथ काम करने के बाद, तो उसका मन था कि वो वहाँ एक चैप्टर खोले। हाँ इस दुनिया का सबसे बड़ा रेफ्यूजी कैंप है, तो हाँ एंड वी वर ऑल रेडी। मतलब उसने हमें बोला, एक बारी वो वहां पहुंच के उसने मुझे बताया कि मैं क्या बोलते हैं कुछ करना चाहती, तो वी वर वेलकम्ड, वी वेलकम्ड हर एंड सेड यू जस्ट डू इट, आपको जो चाहिए बताओ। एंड यू वोंट बिलीव कि यहाँ से कोरियर करके पूरा ऑफिस का सामान गया है यूएस से, कि वो लड़की को अगर कुछ करना चाहती है तो वो रुके नहीं, वो करे। सो यहाँ से सारा ऑफिस अरे पैक हुआ है, और तो बाई एयरपोर्ट। तो जय एक बात बताइए, ये देहरादून हाँ। बेस्ड है अभी जॉय, तो ये क्या अलग सिटीज में भी आप इनका ऑफिस डालना चाह रहे हैं? कुछ ऐसा होगा इन फ्यूचर? मेरा अभी, देखो अभी तो मेरा जो सबसे बड़ा जो फोटे है वो उत्तराखंड है, क्योंकि मेरी, मुझे लगता है कि यहाँ मुझे सब कुछ, सब लोग मुझे जानते हैं, मैं सबको जानता हूँ, और मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। बाकी दूसरे शहरों में ये है कि मैं जाके नहीं खोल पाऊंगा, मुझे इतना पक्का पता है, क्योंकि उत्तराखंड को ही मेरी बहुत जरूरत है। मैं इससे बाहर जाना ही हम्म। नहीं जा पाऊंगा। बट हम्म। अगर कोई ऐसा मेंबर मिलता है, वो कहता है कि दिल्ली में भी बहुत जरूरत है काम करने की, आई वांट टू हाँ चैप्टर इन दिल्ली, तो दे आर मोस्ट वेलकम। वो वाह हमारे साथ बात करे, चैप्टर खोले, वो वहां का प्रेसिडेंट बन जाए, दिल्ली का एक वाह। वो बने, वहां की टीम चलाए, फंड्स क्रिएट करे, काम करे, एंड जो बाकी हेल्प चाहिए होगी हमारे तरफ से हम वो करेंगे। तो तनु रायपुर में कर सकती है काम और मैं पुणे में कर सकती हूँ, राइट? बिल्कुल, तो पुणे में स्टार्ट कर सकते हो। पक्का यस, पक्का, वी आर इन इफ यू विल हैव ट्रू। एनीथिंग। एवरी सोशल कॉज वी आर देयर, सीरियसली। तो सुरुचि, जय की हमने सोशल साइड जानी काफी कुछ इन्होंने किया, कोविड में सफर किए हुए बच्चों को अडॉप्ट किया, प्लांटेशन किया, फूड एंड सप्लाईज प्रोवाइड की, जॉय के फाउंडर हैं।
जो कि ऑलरेडी बहुत कुछ कर रहा है। तो लेट्स नाउ नो जय थोड़ा पर्सनली, ठीक है? लाइक व्हाट आर हिज हॉबीज, हिज पर्सनालिटी, आर यू मैरिड और नॉट? तो थोड़े ऐसे क्वेश्चन है, आप अपने बारे में बताइए। और आप Who is खाली Jay टाइम में Sharma? कैसे चेयर अप करते हैं? ये योर पर्सनल डिटेल्स प्लीज। तो बेसिकली जय इज नॉट एट ऑल मैरिड, तो जय अभी बहुत दूर है इन सब चीज़ों से। एंड दूसरा, अभी मेरा मोटो पहले ये है कि मुझे सोशली एक अच्छा नाम बनना है और काम करना है उत्तराखंड। दूसरा कि अभी जय इज वर्किंग इन उत्तराखंड ऑब्वियसली, सो एंड like you can ask, like I don't know how to explain myself. Tell us हॉबीज, about ओके, फर्स्ट ऑफ hobbies. ऑल टेल आवर Hobbies. हॉबीज। What do you do? तो मेरी हॉबीज बहुत इंटरेस्टिंग है, जो बहुत कॉमनली होती नहीं लोगों की। सो मैं ड्रोन पायलट हूँ एंड आई फ्लाई ड्रोन्स, Wow. एंड आई एम वन ऑफ द एल्टीट्यूड ड्रोन पायलट इन उत्तराखंड। वाह मैंने केदारनाथ से वाह 3 किलोमीटर ऊपर से फ्लाई किया है ड्रोन, जहाँ से यूजुअली ड्रोन नहीं फ्लाई होते हैं। तो अब मैंने यूनाइटेड नेशंस के लिए, वर्ल्ड बैंक के लिए काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए, जिसमें मैंने मेरे ड्रोन की मदद से काफ़ी डेवलपमेंट के उत्तराखंड में काम हो पाए, क्योंकि वहाँ तक जाना मुश्किल था पर ड्रोन का जाना आसान था। तो मेरे ड्रोन की मदद से वो हुआ। एंड एक कितनी एक्साइटिंग हॉबी है ये, वाओ। वो आपदा आई थी, सबको पता पता होगा, अभी रिसेंटली आई थी, बहुत डिजास्टर था एक वो भी। तो मेरे ड्रोन की वजह से, मेरे मेरे स्किल की वजह से 2 गांव की कनेक्टिविटी बन पाई, क्योंकि उस गांव वालों के पास अमेजिंग। लाइट चली गई थी। तो मेरे ड्रोन से हमने केबल्स बांधकर ड्रोन फ्लाई करके वो केबल उस गांव तक भेजी। वो वहां पर हमारे इंसान पहुंचे, जो गांव में वो थे उनसे कनेक्टिविटी बन पाई। तो ये ऐसी बहुत सारी चीजें शेयर, मतलब मेरे भी खुद, जो मेरे जानते होंगे मुझसे लोग, यहाँ मेरे भी पर्सनल होंगे, उनको भी नहीं पता होगी। तो बिकॉज ऑफ मी एंड माई ड्रोन उस गांव को बिजली और कनेक्टिविटी मिल पाई विद इन I mean, even your hobbies are benefiting people, not Yes, you. yes. Yeah, मतलब it is not for, generally people hobbies होती है खुद की enjoyment के लिए and all, कि अपना अकेले में बैठ के वो चीज करो, but what an exciting hobby, amazing. and And I travel a lot. yes, देहरादून तो छोड़ो, उत्तराखंड का सिर्फ कुमाऊं रीजन का थोड़ा सा रह गया है। मैंने पूरा उत्तराखंड अच्छे से एक्सप्लोर करा है, और नॉट जस्ट एक्सप्लोर कि मैं उस शहर में से निकला हूँ या खाया है, मैं हर हाँ, 10-10 दिन, एक हफ्ता रह के आया हूँ। तो वहाँ का हाँ। प्रॉब्लम समझने के लिए कि वहाँ क्या होता है, लोग कैसे हैं, वो रीजन कैसा है, वहाँ का खाना कैसा है, वहाँ क्या घूमने के लिए है। तो मैंने इस उत्तराखंड को, मतलब मैं पंजाबी हूँ बट मैं अपना को पंजाबी पहाड़ी बोलता हूँ, क्योंकि मैं पहाड़ियों से कुछ चीज़ों में ज़्यादा नॉलेज है मुझे, क्योंकि मैंने उत्तराखंड इतना ज़्यादा ट्रैवल किया है। क्योंकि तो जहाँ आपको तो काम गढ़वाली करना भी होता आती है। होगी। बहुत ही थोड़ी बहुत समझ आती है, नो मुझे आती नहीं है। ओके। पर जहाँ भी काम करना होता है वहां पे एक्सप्लोर करना ही पड़ता है, ये तो है। म्यूजिक राइट। का शौक है जय? हाँ, बिकॉज आई एम अ ट्रैवलर, सो आई, मैं गाता नहीं हूँ बट सुनता बहुत हूँ, मतलब बहुत, तो इतना कि सुबह से लेके तक कान में ईयरफोन चाहिए और गाने मुझे अपने। वाह, हैप्पी इन Nice, योर nice. ओन वर्ल्ड। Yes, वाओ सो तनु। गुड। seriously. चलिए अब थोड़े से क्विक क्वेश्चंस ले लेते हैं, जस्ट टू नो हिम बेटर। सो माय क्वेश्चंस आर लाइक, आपको जल्दी जल्दी आंसर करना है। माउंटेन्स और बीचेस? ऑब्वियसली माउंटेन्स। माउंटेन। नाउ Mountain. this one is going to be a tricky one. Cricket or football? ऑलवेज अ क्रिकेट, नॉट एट अ फुटबॉल। हाँ, हमें पता है आप बहुत बड़े क्रिकेट फैन। आई या थिंक आई एम बैक, आई डोंट नो। अच्छा ठीक है। नाउ लास्ट प्लेस यू वुड एवर गो? केदारनाथ। ओके। योर मोस्ट फेवरेट टीवी शो? सो इट मोर देन, मैंने तो टीवी अगर नहीं देखते आप? मेरे घर में टीवी, मतलब मेरे मेरे रूम में टीवी नहीं है, और मैं टीवी देखा ही नहीं 18 साल से। ओ गॉड, इसीलिए आप इतना कुछ कर पा रहे हैं तनु। या नहीं, मैं भी टीवी नहीं देखती हूँ, लेकिन मैं इंटरनेट इंटरनेट का बहुत बड़ा
वो वर्म हूँ मैं। वेल टीवी और हमारा लाइव 25 सेकंड के बाद बंद हो जाएगा, देन वी हैव टू रीजॉइन। डिस्कनेक्ट हो रहा है? हाँ, डिस्कनेक्ट होने ओके वाला। बिफोर ओके, दैट, क्योंकि 1 hour होने वाला है। हाँ, योर मोस्ट अनयूजुअल फियर यू हैव। Losing people. वाह, मेरा भी वही है।